Assalamu alaikum. Thanks for joining us. Thanks for watching lectures. Today's topic is basically properties of expenditure function. In the last lecture of the expenditure function, we discussed that how we can calculate the expenditure function. And now we will not discuss on more the expenditure function because we have discussed in detail in the last lecture. Now we have to give the more time on the properties of the function. So just for recap, we are just revising our some terminologies. Number one, we know that this is the px, x, py, y and m. This is our budget line, and it is also our objective function in the expenditure minimization problem. So we may say that easily, this is our objective function and this is subject to constant utility. If we are saying that our utility is constant, and how can we minimize our expenditure? So this problem is also called the duality approach. So very simple. We will set up the Lagrange multiplier and we will put the objective function here, and then we will put the utility function here, and by applying the 4 or 5 steps. Number one कि हम इसको choice variable सबको derivative लेंगे. x हमारा choice variable है, y हमारा choice variable है और theta हमारा choice variable है. And जब हमारे पास ये तीनों equations आ जाती हैं, and then we solve it and we find basically the demand functions, and these demand functions are called the Hessian demand function. और मैंने जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड Hessian demand function है वो यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि in the last problem of the expenditure minimization we can find that, and the expenditure function we can find that how these Hessian demand functions are calculated. So we move forward and we say that this is our objective function, this is the utility function, and this is a Lagrange multiplier equation. And when we will solve it, when we apply it, so we will find out the basically two demand function. Number one is x, number two is y, and these functions will call the Hessian demand function. Okay, and these are very interesting कि आपने देखा कि मार्शलियन डिमांड फंक्शंस जो होते हैं वो हमने देखा कि जब हमने उसको कॉफ डगलस फंक्शन के साथ परफॉर्म किया तो उसमें जो ओन प्राइस का इंक्लूजन शामिल था, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो एक डिमांड फंक्शन हिक्शियन है उसमें उस कमोडिटी की अपनी प्राइस और जो क्रॉस प्राइस है वो भी, यानी कि और दूसरी प्राइसेस जो दूसरी कमोडिटीज़ जो अपनी लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पैक्ट डालती है आपकी कंजम्पशन पे. सो दीज आर Hessian डिमांड फंक्शन, and how we will drive the expenditure function from the Hessian demand function. Simply we will plug these function into our objective function, and objective function mean pxx pyy is equal to m. So we will get the expenditure function. और expenditure function को अगर हम mathematical notation में लिखें तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, means E mean expenditure and E is the function of prices and utility. So P mean all prices. This is a vector, and we are saying that we are using the x vector n commodities. So we have n prices and a specific utility of a consumer. We will have it. So we know that कि V और U दोनों साइन यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. जब हम डायरेक्ट यूटिलिटीज़ के अंदर डील कर रहे होते हैं तो U यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट अप्रोच में यूज़ करते हैं तो वी यूज़ दिस V. सो डोंट कंफ्यूज फ्रॉम दीज टर्मिनोलॉजीज़. ये बुकिश टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें यूज़ करनी पड़ती हैं जस्ट फॉर द डिस्टिंग्विशनेस दैट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ कैन वी जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस फंक्शन. Now we move forward and we say that expenditure function in our case is U mean V, px power 3 power 4, py power 1 over 4, and this is the constant term we have it. Now we say that now we discuss about it the properties of the expenditure function. हमने सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस इसलिए किया कि हम जनरलाइज फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए, आपको आसान देने के लिए, और वी वांट टू लिंक अवर लेक्चर दिस लेक्चर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर.
So we discuss all these things. So these are 5 properties of the expenditure function. We will discuss one by one. Number 1 is very simple and very easy. Increasing in utility and non-decreasing in prices. It is very sensible. It is very common property of the expenditure function, and everyone can understand it. This is the expenditure function. So it will not decrease in utility, बल्कि it will always increase in utility. क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है और इसमें ये यूटिलिटी है. सो इफ एनी कंज्यूमर wants to increase his or her utility, so उसको अपने फंक्शन को, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा. For their increasing utility, his or her required the more expenditure. So simply, how can we explain this property in the mathematical notation? Simply we can say that if the partial derivative of expenditure function with respect to utility, so it will definitely be greater than 0, because it is strictly increasing in the utility. So simple, we can say that this one is in the numerator, and if we will take the derivative of with respect to v, so we will have this positive term. So definitely it is greater than 0. We can simply understand it. Then non-decreasing in prices. So if the prices increases, because we have know that there are so many prices, so we cannot say that कि ये prices में increase करेगा. We can say that, अच्छा पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये PI हम क्यों लिख रहे हैं. मीन कि आपको different prices का सामना करना पड़ सकता है. हम कह रहे हैं ये non-decreasing. Non-decreasing का मतलब ये है कि या तो ये इंक्रीज करेगा या ये इंक्रीज ना भी करे. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था. इट इज नॉट डिक्रीजिंग. नॉट डिक्रीजिंग मीन द रिलेशनशिप शुड बी नेगेटिव. सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट all the variables that we are observing here, they are in the numerator, they are in the positive shape, and if you will take the derivative of these things, so answer apparently will be the positive. बट वी आर सेइंग दैट कि वो एक्सपेंडिचर मुमकिन है कि वहीं रहे और बढ़ जाए. वेरी सिंपल इज़ दिस. इफ़ द कमोडिटीज़ प्राइस आर इंक्रीजिंग, तो लोगों के ख़र्चों में इजाफा होगा. अगर आप 4 या 5 कमोडिटीज़ पे इन्हिसार कर रहे हैं, लेट्स सपोज इफ़ यू आर टेकिंग द मिल्क, यू आर टेकिंग द ब्रेड, यू आर टेकिंग द मीट, एंड द प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज़ आर इंक्रीजिंग, so definitely your expenditure function is saying that कि your expenditure will increase. लेकिन यहाँ पर जो concept है कि वो ज़रूरी नहीं है कि expenditure उसका बढ़ भी सकता है, most probable बढ़ेगा, लेकिन बराबर भी रह सकता है. So now there is a concept of substitution. Now this is a concept of the complement goods. यहाँ पर ये दोनों concept applicable होते हैं. And substitution mean कि वो मुमकिन है कि अपनी कमोडिटीज़ को जिसकी प्राइस बड़ी हो उसको सब्स्टिट्यूट कर दे किसी दूसरी ऐसी कमोडिटी से जिसकी प्राइस या तो वही थी या थोड़ी कम हुई होगी. सो इफ़ वी, बिकॉज एक वक्त में हम किसी एक प्राइस से इम्पैक्ट देखते हैं, सो इसी तरह से ये भी होता है कि एक्सपेंडिचर में कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइसेस, अगर मिसाल के तौर पे एक प्राइस बढ़ रही है तो कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से किसी दूसरी प्राइस को, वो दूसरी कमोडिटीज़ को भी कम कर देगा. क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जैसे हमने देखते हैं बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट चीज़ें हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल हमें मिलती है कि फ्यूल एंड यूजेज ऑफ द व्हीकल. एंड तो अगर वो देखता है कि मेरी फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो मैं अपनी व्हीकल का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, एज रिजल्टेंटली हुआ क्या कि उसने अपने फंक्शन को फ्यूल की प्राइस से देखा, लेकिन उसकी कमोडिटी बंडल में एक और कमोडिटी थी जैसे व्हीकल यूजेज, वो भी कम हो गया. तो एक्सपेंडिचर कैन बी मैनेज्ड एट ए लेवल. सो प्रॉपर्टी सेइंग दैट कि ऑलवेज इंक्रीजिंग इन यूटिलिटी. अगर यूटिलिटी कंज्यूमर को अपनी बढ़ानी है तो एक्सपेंडिचर में इजाफा लाजमी करना होगा.
and if the prices increases, so expenditure will definitely increase are the constant. So this is the property 1, and now we discussed that the property 2. Property 2 mean homogeneous of degree 1 in prices. अब आप अगर थोड़ा सा देखें मार्शल डिमांड फंक्शन को, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट एक रिवाइज कराना चाहता हूँ. तो उसमें आपने देखा कि हमारे पास इनकम भी थी और प्राइसेस भी थी. सो वी आर डिस्कसिंग इन ऑल कमोडिटीज़, लेकिन यहाँ पर आपने आपको रिस्ट्रिक्ट रखना है, एंड वी जस्ट वांट टू सी द होमोजीनियस इफेक्ट इन द प्राइसेस. मतलब इसमें यहाँ पर डिस्कशन यूटिलिटी की नहीं है. सो वी विल जस्ट डिस्कस द चेंज इन प्राइसेस. सो फंक्शन विल ऑलवेज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इन प्राइसेस. जब भी कोई डिग्री 1 होता है तो उसको ज़रा याद रखें. डिग्री 1 का मतलब ये है कि if we are saying degree 1, तो that's mean definitely will impact on the dependent variable. अगर हम कह रहे हैं कि प्राइसेस में तब्दीली आएगी और वो होमोजीनियस भी होगी और डिग्री 1 होगी, that's mean definitely will expenditure will function will be affected. And डिग्री 0 मीन कि वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो फंक्शन है वो अफेक्टेड नहीं होगा. अब देखते हैं कैसे. अगर जनरल फॉर्म देखें तो हमने देखा था कि जनरल फॉर्म में देखा था कि एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्स, प्राइसेस ऑफ वाई एंड यूटिलिटी, लेट्स सपोज. एंड इफ़ वी आर सेइंग दैट कि अगर वो डिग्री 1 है, सो दैट्स मीन अगर एक्सपेंडिचर इज़ डिग्री 1 इन प्राइसेस, सो जस्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय लैम्डा विद प्राइसेस, नॉट फॉर यूटिलिटी. वो अपनी जगह वही रख रहे हैं. सो नोटेशनल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा आउटसाइड हो जाएगा और अपना फंक्शन जो है वो रिपीट कर जाएगा. व्हाट इज़ हैपनिंग? जब होमोजीनियस का मतलब है कि ये सेम फंक्शन रिपीट कर गया, एंड लैम्डा मीन कि वो 1 पावर के साथ उसने पूरे एक्सपेंडिचर को रेज कर दिया. Now we see here कि how can we see here this thing. अगर मैं कहता हूँ कि इस कमोडिटी में, इस फंक्शन में आप अपनी प्राइसेस को लैम्डा से इंक्रीज़ करें, तो उसका मतलब ये है कि आपके बंडल में अगर n कमोडिटीज़ हैं तो आपकी n कमोडिटीज़ सब एक लेवल से ऊपर जाएं. जैसे इन्फ्लेशन रेट होती है, वो एक पूरा एक इकॉनमी का इन्फ्लेशन रेट में पूरी तमाम प्राइसेस के अंदर आपको इजाफा देखने को मिलता है. सो फंक्शन सेज दैट कि आपके एक्सपेंडिचर में लाजमी इजाफा होगा अगर तमाम कमोडिटीज़ उससे जाएंगी. इसको इस तरह देख सकते हैं कि E इज़ देयर, V इज़ देयर, एंड वी आर सेइंग दैट लैम्डा PX, लैम्डा PY, और इसको मैं C ले रहा हूँ मीन एज ए कॉन्स्टेंट टर्म. तो 3/4, 1/4. सो सिंपल वी कैन से दैट कि V अगर मैं एज इट इज़ लिखूँ, px पे पावर 3/4 मैं एज इट इज़ लिखूँ, py पे पावर 1/4 मैं एज इट इज़ लिखूँ, और ये वाला c इसके बराबर है. सो वेयर आर द लैम्डाज? लैम्डा अगर मैं यहाँ भी था, बेसिस थे मैं पावर ऐड कर लूँ तो ये 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा. एंड यू नो डैट कि 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1. तो आप ये देख सकते हैं इजीली कि एक्सपेंडिचर फंक्शन लैम्डा बाहर आ गया और पूरा एक एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो आपका प्रीवियस फंड वाला रिपीट कर गया. और दिस इज़ ई स्टार मीन कि अब एक नया एक्सपेंडिचर आपको पे करना पड़ेगा. सो इट्स प्रूव दैट कि द एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजीनियस डिग्री 1 इन प्राइसेस. नाउ वी डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट इज द कॉन्केव इन प्राइसेस. ये समझने की एक बात है कि इसके लिए हमें ग्राफ इस्तेमाल करेंगे कि इसमें हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो स्ट्रेट बिहेवियर नहीं दिखाता, कॉन्केव बिहेवियर दिखाता है इन प्राइसेस में. सो अगर हम एक साइड पे अपने एक्सपेंडिचर रख रहे हैं जिसको हम यूं कहते हैं, और एक साइड पे हम प्राइसेस रख रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो एक कॉन्केविटी शेप में होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. स्ट्रेट लाइन का मतलब तो ये था कि प्राइस बढ़ती तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता, जितनी प्राइस बढ़ती उतना एक्सपेंडिचर बढ़ जाता. प्राइस में 2 रुपये का इजाफा होता है, एक्सपेंडिचर आपके क्योंकि कमोडिटी तो आप चेंज नहीं करना चाह रहे. क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि आपको यूटिलिटी सेम रखनी है.
जिस वक्त आपने कमोडिटी में तब्दीली लेके आए आपकी यूटिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पूरी एनालिसिस का मकसद ये है कि अगर आपने कंज्यूमर की यूटिलिटी को फिक्स रखना है और अगर आपकी प्राइस में इजाफा होता है तो वो अपनी यूटिलिटी को लूज़ नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली उसको अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। अब दिस इज अनदर थिंग दैट कि वो उसका इम्पैक्ट उसकी इनकम पे कैसे आता है ये एक सवाल अलग है, लेकिन एनालिसिस ये बता रही है कि आपको ये सो व्हाट विल बी, तो इट शुड बी स्ट्रेट लाइन कि आपने जितनी प्राइस बढ़ी उतना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन दिस कमोडिटी इज सेइंग दैट कि एक्सपेंडिचर फंक्शन का बिहेवियर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, एक्सपेंडिचर फंक्शन का बिहेवियर एक कॉन्केविटी की तरफ होता है। वाई इट इज़ द कॉन्केव इन द प्राइसेस, कि जब एक्सपेंडिचर की किसी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर उस तरह नहीं बढ़ पाता जितना उसकी प्राइस बढ़ती है, वो उससे कुछ कम उसमें इजाफा करता है। यानी एक्सपेंडिचर बढ़ता तो है, मजबूरन बढ़ाना पड़ता है, और ये आपका एक जनरल बिहेवियर भी अपनी लाइफ में है। कोई एक ऐसी कमोडिटी जैसे मिल्क है, दैट्स मीन यू आर टेकिंग द ब्रेड, यू आर टेकिंग द मिल्क, सो मेनी गुड्स यू आर टेकिंग इन योर लाइफ। और आप देखते हैं कि जैसे नाउअडेज द मिल्क प्राइसेस आर गोइंग बी हाई, सो definitely your expenditure will go high, but what ratio, what percentage by the milk prices has been increased, at that ratio your expenditures will not increase, not necessary, because क्योंकि आप उसकी कंजम्पशन में कुछ कमी वाक़ई करेंगे। और अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज़ करते हुए आप अपने आप को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी ऐसी चीज़ पे कि आपकी यूटिलिटी भी चेंज ना हो और योर एक्सपेंडिचर विल हाई बट विल नॉट विद दैट रेशो दैट द प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका इंक्रीज है ये आपका जो है वो एक कॉन्केविटी की शेप में होगा। नाउ द मैथमेटिकल नोटेशन इज बी रिटन हेयर, सो हम उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। यूजुअली इट इज़ अवेलेबल इन बुक्स बट थोड़ी समझ में नहीं आ पाती है कि ये क्या लिखना चाह रहा है। सो वी कैन से डैट कि दिस इज़ बेसिकली आ एक्सपेंडिचर ई पी पावर डैश यू, पी मीन कि ये एक स्पेसिफिक प्राइस थी मिल्क की, तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ पी डैश को, एंड वी आर सेइंग दैट कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई और मैं पी डबल डैश को यहाँ ले लेता हूँ, इसमें इजाफा नज़र आ रहा है मुझे। देन वी कैन से दैट कि व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ द दिस पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज़ द दिस पॉइंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अगर टू कमोडिटीज़ की एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रॉपर्टी जो कॉन्केविटी है उसको साबित करने के लिए आपको ये मैथमेटिकल टर्म यूज़ करनी पड़ती है कि हम जो कह रहे हैं अपनी बात में उसको हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया कि वो कॉन्केव क्यों होता है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे साबित करेंगे। सो वो कहता है कि जो एक बेस प्राइस थी एंड व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, जब उन दोनों प्राइसेस का आप वेटेड एवरेज लें तो वो आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन पे नज़र नहीं आएगा और वो एक्सपेंडिचर फंक्शन से कम होगा, वो एक्सपेंडिचर फंक्शन से कम होगा। दैट्स मीन एक्सपेंडिचर फंक्शन ये है तो ये इसका वेटेड एवरेज है, क्योंकि देखें ये के जो है इसकी जो रेंज है कि ये आपका जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, मीन की तो दिस वेटेड एवरेज। तो जब के आपने लिया 0.3 तो यहाँ पे आप लेंगे 0.7। जब आप इसका एक्सपेंडिचर का वेटेड एवरेज लेंगे तो ये आपको हमेशा जो मेन फंक्शन चल रहा होगा उससे नीचे दिखाएगा, क्योंकि लेस देना या फिर उसके ऊपर दिखाएगा। अगर बहुत ही कम चेंज आता है प्राइस में, जस्ट इतना थोड़ा सा आता है, तो वो उसके ऊपर ही आ जाएगा, नहीं तो उससे नीचे होगा। जैसे अगर इसको हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये जो एक्सपेंडिचर यहाँ जो वेट्स आएगा जिसको ये कह रहा है कि वेटेड एवरेज यानी एक्स बार, तो ये इससे नीचे होगा, यानी असल में तो यहाँ होना चाहिए लेकिन ये इस टाइम यहाँ होगा। सो दिस इज द मैथमेटिकल आंसर दैट द एक्सपेंडिचर फंक्शन will be concave in prices. Then we can understand that कि इसका लॉजिकल आंसर ये है कि वो जब प्राइसेस में इजाफा करेगा तो वो अपने आप को उस हिसाब से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएगा जिस हिसाब से उसकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है। Now the fourth property is that the continuous in prices. Continuous in prices का मतलब ये है कि जो ये आपको जो एक्सपेंडिचर का एक कर्व नज़र आ रहा है,
इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, इसका बिहेवियर ऑलवेज भी पॉजिटिविटी होगी। और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि उसका जिग बिहेवियर नहीं होगा, कि वो अप टू दिस रेंज प्राइसेस एक अलग बिहेवियर दिखाएगा, अप टू दिस रेंज एक वापस डाउन हो जाता है या किसी और सब में निकल जाता है। इट विल नॉट बी हैपन। ऑलवेज द प्राइसेस में आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन एक कंटिन्यूटी देगा, उसमें कोई गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस कर्व। सेकेंड थिंग कि इसके लिए एक शर्त है कि प्राइसेस ऑलवेज भी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव होगी, यानी कि कुछ ना कुछ प्राइस होनी चाहिए किसी कमोडिटी की। इसका सिंपल है कि वो कमोडिटी आप अनटिल एंड अनलेस उसको फ्री ना कर दें। इसका मतलब ये कि अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो फ्री मिल्क अगर आपको मिल रहा है, फ्री गुड्स है, उसके ऊपर बात नहीं है। एनालिसिस इज अप्लाइंग दैट कि उस कमोडिटी की कोई ना कोई एक प्राइस ज़रूर है। These are the four properties, and the fifth one property is called the Shepard lemma. Shepard lemma, that's mean it is in a separate lecture we will perform in the Shepard lemma. Simple, we can understand that we have expenditure function E, and if you will take the derivative of this function with respect to prices, so we will have again a Hessian demand function. So don't be confused on this property. We will have a separate lecture on the Shepard lemma. These are all about the 5 properties of the properties function. I hope that you learn about it, and please subscribe our channel for more videos. Thank you.